So we were doing the various seed dispersal methods, okay, by which the seeds of the plants they are dispersed. So we discussed the agents, wind and water. Now today we will be discussing about the animals. So seed dispersal by animals. So in case of animals, how the seeds they actually move from one place to the another. The method of dispersal, it involves the seeds having the specific characteristic. Okay? There are some seeds that are having the sharp edges, very good, spines, hooks. Okay, आपने देखे होंगे कई seeds जो होते हैं वो तीखे तीखे से होते हैं. Okay, so in this way they actually get attached to the body of the animals. या उनके फर के साथ वो क्या कर जाते हैं, अटैच कर जाते हैं. Okay, so when they get attached with the body or with the fur of the animal, so when the animals they actually move from one place to the another, तो वैसे ही ये seeds जो हैं वो उनके साथ जाते हैं. Okay, so in this way the seeds they can be dispersed from one place to the another place. The second way, these seeds they can be eaten by the तो कुछ एनिमल्स हैं जो इन सीड्स को खा लेते हैं. ओके, एंड एक्सक्रीट आउट. ओके, तो जो उनके फेसेस होते हैं, फीसेस होते हैं, जब वो एक्सक्रीट करते हैं तो वो सीड्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं उनकी बॉडी से. एंड इन दिस वे दे कैन ग्रो इन दैट पर्टिकुलर रीजन, इन दैट पर्टिकुलर एरिया. ओके, सो दिस इज हाउ द सीड डिस्पर्सल बाय द एनिमल. एग्जांपल्स बताओ बेटा इसकी. Xanthium, Gokru, very good. So Xanthium, Gokru and Urena. These are the three examples by which the seeds are dispersed by the animals. Now the next method. The next method is by the bursting mechanism. बर्स्टिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, यू आर हैविंग सम ऑफ द प्लांट्स, ओके, जिनके फ्रूट्स जो हैं वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं. ओके, यू आर हैविंग सम ऑफ द प्लांट्स हुज फ्रूट्स दे एक्चुअली बर्स्ट आउट, ऐसे खुल जाते हैं. ओके, सो इन दिस वे द फ्रूट्स दे कंटेन सीड्स. यू नो, फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं. So when they actually burst out, तो वो seeds जो हैं they get scattered over different area. Okay, तो explosive mechanism से, bursting mechanism, that means explosive mechanism से क्या होता है, वो जो seeds हैं they are actually thrown at a very large area. Okay, so in this way also the seeds they will be scattered at a large area. Okay, examples बोलिए बेटा. And balsam. Balsam, pea, castor, and geranium. Okay, so these are the examples of the seed dispersal by the bursting mechanism or by the explosive mechanism. Explosion ही जैसे होता है एक धमाका सा, है ना. So in the same way the fruits they actually burst out, right? So this is how the seed dispersal method is there. Now we are moving to the last topic, that is germination of the seed. Germination. Germination में हमने क्या करना है बेटा? What we are going to do in the germination process? We will plant it in the soil. हमने उसको क्या करना है, soil में लगाना है. You all have seen the seeds. मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीड जो होता है उसके ऊपर एक सीड कोट होता है. देखा है आपने कभी? कभी ऑरेंज के जो सीड्स होते हैं वो देखा करो, ठीक है. जब आप ऊपर से उसको पील करोगे उसके अंदर से सीड निकलेगा. ओके, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, व्हेन वी प्लांट दैट सीड इन द सॉइल, तो उसमें से जो अंदर वाला सीड है वो बाहर आता है. ओके, इट कम्स आउट. And there are two parts of that seed that actually grow, radical and pumil part. इसमें से एक root part होता है और एक shoot part होता है.
okay, where the radical is the root part of that seed. तो सबसे पहले जब वो सीड बाहर आता है अपने सीड कोट से, तो जो उसका रेडिकल पार्ट है, जो उसका रूट सिस्टम है, दैट एक्चुअली स्टार्टेड ग्रोइंग. तो सबसे पहले वो रूट्स डेवलप करता है. आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द रूट, जो उसका शूट सिस्टम है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जहां पर स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, वो आने शुरू होते हैं. आफ्टर दैट योर प्लूमल पार्ट, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग. ओके, सो इन दिस वे अ न्यू प्लांट विल बी फॉर्म. ठीक है, तो ऐसे आपके पास एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क बेटा. हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में तो आप पूछ लो. क्लियर? ओके, व्हाट हैपेंस इन द बर्स्टिंग मैकेनिज्म? मैकेनिज्म होता है, देखो आपका फ्रूट पड़ा हुआ है लाइक दिस. वो फ्रूट जो है वो एक झटके में ऐसे खुल जाता है. ओके, तो जो उसके सीड्स हैं अंदर वाले, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे स्कैटर हो जाते हैं. तो सीड्स अलग अलग एरिया पे स्कैटर हो गए, वो वहां पर ग्रो करना शुरू कर देंगे. ओके, सो दिस इज द सीड डिस्पर्सल मेथड बाय द बर्स्टिंग मैकेनिज्म. हाँ जी बेटा, एनी डाउट? ठीक है, चैप्टर हो गया ये. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर नाउ, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. So we will be revising the next chapter now, physical and chemical changes. So बहुत easy chapter है physical and chemical changes का. You have also done in the last. Okay. So you know a number of changes, they occur in your surroundings. Can you list some of these changes? Melting of ice. Okay. हाँ जी, kneading dough. Okay, kneading dough. Anything else? Burning of paper. Very good. Germination of plants or germination of seed. Inflation of balloons. Digestion. हाँ जी, और बेटा? बस? of vegetables. Okay, water to steam or tearing of paper. Anything else? Rusting of iron. हाँ जी, बस. चलो, let's stop here now. ठीक है, explain भी तो करने हैं. चलो. So in all these cases you can see there are some changes like melting of ice. जहां पर आप आइस को मेल्ट करवा रहे हो, here the state of the ice will be changed. State का मतलब क्या है? We are having 3 states of matter: the solid, liquid and these states they are interconvertible with each other. आप easily इन states को क्या कर सकते हो? Change कर सकते हो. Okay, where we can convert the solid thing into the liquid form and the liquid into the gaseous. Okay, so the first method, melting of ice, is a simply change of the state of a matter. Similarly, if I talk about the water to steam, that is also a case where the water that is in the liquid state, it will be getting converted into gaseous state. Okay, so these changes here, in these cases only the state of the matter is
चेंज। उस मैटर की हमने क्या चेंज की है, सिर्फ स्टेट। ओके, नीडिंग डो, डो को नीड कर रहे हो, ठीक है। यू कैन गिव एनी शेप टू द डो, सर्कल दे सकते हो, स्क्वायर दे सकते हो, ट्राइंगल दे सकते हो। ओके, बर्निंग ऑफ पेपर, पहले पेपर कैसा होता है, विच कलर, व्हाइट। आफ्टर बर्निंग ऐश हो जाता है, इट चेंजेस इनटू ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस। पहले सॉलिड फॉर्म में होता है, बाद में एक पाउडरी सब्सटेंस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि पेपर जैसे पहले था वैसे नहीं रहा, देयर इज चेंज। ओके, एंड दिस चेंज इज नॉट द वन दैट वी कैन रिवर्स, जो पहले वाला था वैसे नहीं ला सकते, ठीक है। अब इन दोनों से ये वाला चेंज जो है वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि आप डो को अगेन नीड कर सकते हो किसी भी शेप में, आइस को आप मेल्ट करवा सकते हो। ओके, जर्मिनेशन ऑफ सीड अभी पढ़ा हमने, जब मैं सीड को प्लांट करती हूँ सॉइल में, ओके, तो वहां पर जो सीड है वो आपका ग्रो करना शुरू कर जाता है। क्या आप एक प्लांट को दोबारा सीड में कन्वर्ट कर सकते हो? तो यानी कि ये दोनों चेंजेस आपस में मिल रहे हैं थोड़े से, है ना, जिनको हम दोबारा नहीं चेंज कर सकते। इन्फ्लेशन ऑफ बैलून, बैलून एक बार ही आपने उसमें एयर जो है वो भर दिया, क्या आप उस एयर को बाहर निकाल सकते हो? आपने सिंपली बाहर निकालना है, उसको टक नहीं किया, उसको बंद नहीं किया, यू कैन डू दैट, इजिली निकल जाएगी ना वो एयर। वही एयर जब आपने दोबारा इजिली फिल करनी है, यू कैन फिल दैट। ओके, so that means this process it resembles with this type of processes. Digestion, जो फूड आपने एक बार खा लिया, क्या आप उसको दोबारा उस प्रोसेस में उस फॉर्म में ले सकते हो? नो। ओके, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं वो अलग होती हैं, जो कुक्ड वेजिटेबल्स होती हैं उनका टेस्ट अलग हो जाता है। तो दैट मीन्स दे बोथ आर द डिफरेंट मेथड्स और द डिफरेंट प्रोसेसेस, दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे। वाटर टू स्टीम हमने कर लिया हुआ है। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर है, मैंने उसको टीयर कर दिया, जितना मर्जी छोटा कर लूं रहेगा तो वो पेपर ही ना। ओके, हेयर वी हैव एक्चुअली चेंज इट्स साइज, मैंने उसका क्या चेंज किया है, मैंने सिर्फ साइज चेंज किया है, बट है तो वो पेपर ही ना। यहाँ पर तो बिल्कुल ही उस पेपर को मैंने किस में चेंज कर दिया, ऐश में। तो मेरे पास वो ब्लैक ब्लैक तो नहीं आ रहा, मेरे पास है तो वो व्हाइट फॉर्म में ही। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पहले कैसा होता है, जब आप आयरन के आर्टिकल्स लाते हो बड़ी शाइनी अपीयरेंस देते हैं आपको, विद टाइम क्या हो जाती है, कोरोजन हो जाती है, रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। तो दैट मीन्स वो आयरन की जो शेप है, सॉरी उस आयरन का जो शाइन है वो लॉस्ट हो जाता है कहीं पे। ओके, तो दैट मीन्स जैसे वो पहला आयरन था अब वो वैसा नहीं रहा। ओके, so that means again there is difference between both the changes. So depending on these types, depending on the various type of changes that we have listed here, we can classify the changes as reversible and we can classify the changes as irreversible or non-reversible. जिन changes को मैं दोबारा कर सकती हूँ repeat, the changes which I can repeat continuously, I can change from one form to the another form, that changes they are reversible changes. Okay, उन changes को हम क्या कहते हैं, reversible changes कहते हैं। जैसे मैंने आइस को मेल्ट करवाया, वो लिक्विड में चलेगी, उस वाटर को जब आप हीट करवाओगे तो वो गैसियस फॉर्म में चलेगी। कवर कर दो उस वाटर को, जितने भी वेपर्स हैं आप देखोगे उस प्लेट के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यू विल सी। जब आप वाटर को बॉईल करवाते हो आप देखते हो, ठीक है, कि उसमें से क्या निकल रहे हैं, वेपर्स निकल रहे हैं, उसको कवर कर दो। आफ्टर कवरिंग इट विद द प्लेट, तो आप देखोगे उस प्लेट के ऊपर जो है वो ड्रॉपलेट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो दैट मीन्स वो जो गैसियस वेपर्स थे आपके वो किस में चेंज हो गए, उस पानी को आप फ्रीजर में रख दो, सॉलिड। ओके, तो यानी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, नीडिंग अ डो मैंने अभी आपको बताया। किसका बेटा, फिजिकल चेंज ही है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर रहे। जब आप उसको आपने नीड किया, नीड का मतलब क्या होता है, गूंथना है। आप डो की बात कर रहे हो, सिर्फ डो को नीड करना।
Okay, if you are saying wheat flour to dough, that will be irreversible. ठीक है, जो आपने चेंज बताया है उसको समझो, नीड करना क्या होता है, ठीक है। तो दैट प्रोसेस विल बी, अगर आप उसकी डिफरेंट शेप्स में जा रहे हो, उसी डो की शेप्स में जा रहे हो, तो दैट विल बी फिजिकल। अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने फ्लोर लिया है, व्हीट फ्लोर लिया है और उसको डो में चेंज किया है, ओके, तो दैट विल बी द केमिकल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर ऑलरेडी बता दिया, इरिवर्सिबल, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड बता दिया, इरिवर्सिबल है। इन्फ्लेशन ऑफ बैलून फिजिकल, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, आप उसको रिवर्स कर सकते हो। डाइजेशन, जो एक बारी खाया वो डाइजेस्ट हो जाएगा, दोबारा तो आएगा ही नहीं। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स अगेन इरिवर्सिबल। टीयरिंग ऑफ पेपर रिवर्सिबल, आप उसको जोड़ तो सकते हो ना टेप के साथ, टेप के साथ, ग्लू के साथ, ओके। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज इरिवर्सिबल। सो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, the reversible and the irreversible nature of the substances, we classify such substances as physical change. तो इनमें जो चेंज हो रहा है, we classify that as physical and chemical. Okay, so based on the changes that these processes they are undergoing, we classify such changes as chemical change and the physical change. Okay, so अभी तक हमने पढ़ा है कि जो फिजिकल चेंज होते हैं दे आर रिवर्सिबल चेंजेस। हाँ जी बेटा, फिजिकल चेंजेस दे आर रिवर्सिबल चेंज, आप उनको रिवर्स कर सकते हो जितने मर्जी टाइम, ओके। एंड द फिजिकल चेंजेस को आप नॉर्मली कैसे देखते हो? यस, देयर इज चेंज इन द स्टेट, जैसे अभी मैंने वाटर आइस की एग्जांपल ली, और फिजिकल चेंज में हम लेते हैं साइज। हाँ जी, साइज में हम क्या कहेंगे बेटा? ओके, और डो का फ्लफीनेस होना, ठीक है, और शेप में, ओके। साइज में आपने बोला अभी कि हम पेपर की एग्जांपल ले सकते हैं, पहले पेपर का साइज बड़ा है, बाद में उसको टीयर करते जाओ, इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर साइज, ओके। सो दिस इज अबाउट द साइज चेंज। शेप, क्ले की ले लो, डो की शेप जो है वो आप चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द शेप ऑफ अ रबर बैंड इजीली, ओके। सो ऑल दीज चेंजेस दे कैन बी लिस्टेड इन द शेप। क्ले मॉडलिंग, और आप किसकी एग्जांपल ले सकते हो? और स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। क्लोथ कटिंग विल बी इन द साइज, पहले बड़ा होता है ना क्लोथ का साइज, फिर आप जब उसको कट कर देते हो छोटा हो जाता है। स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करवाते हो, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करवाते हो, ठीक है, वो भी यहाँ पे शेप चेंज में आ जाएगा। हाँ, शार्पनिंग ऑफ पेंसिल में साइज कम होता जाएगा ना जैसे जैसे आप पेंसिल को शार्प करते जाओगे। द लास्ट वन इज कलर चेंज। हाँ जी, तो आप देखते हो जब आप आयरन के आर्टिकल्स को हीट करते हो तो वो रेड हो जाते हैं, देखा ना आपने, ओके। सो हीटिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, हम फिजिकल चेंज में बात कर रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन तो नहीं ले सकते हम, ओके। तो जब आप आयरन को हीट करवाते हो तो वो रेड हॉट हो जाता है, फिर जब आप उसको कूल डाउन होने के लिए रख देते हो तो वो अगेन फिर से पहली वाली शेप में आ जाता है, ओके। सो दिस इज हाउ द फिजिकल चेंजेस दे कैन बी कैरेक्टराइज्ड, ठीक है। तो अगर आपको पूछा है कि फिजिकल चेंजेस जो हैं वो कैसे आप कैरेक्टराइज करोगे, कैसे आप देखोगे, तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें उन चीजों की सिर्फ क्या क्या चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है? स्टेट,
size, shape and color. Okay, so all these characteristics they mark the physical change. अब फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स जहां से आप स्टार्ट हुए थे आप वहां पर दोबारा आ सकते हो. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल नेचर, राइट. तो फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है मैंने आपको. तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के आप फिजिकल चेंज को कैरेक्टराइज करोगे. यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी. Okay, whenever there is a chemical reaction involved in the substances, जब कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है तो उसमें हम ये कहते हैं कि वो सब्सटेंस जो है, ओके, वो सब्सटेंस जो है वो किसी नई सब्सटेंस में चेंज हो गई है बाय द केमिकल रिएक्शन. कुछ रिएक्शन हुई, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर में, पेपर पहले व्हाइट कलर का था, वो बाद में किस में चेंज हो गया? ब्लैक कलर में. ओके, तो दैट मीन्स हियर कि कुछ उनके बीच में रिएक्शन हुई. Okay, a chemical process it takes place that is not there in the physical one. So here no chemical reaction it takes place in the physical change. Okay, what else? Very good. No new substances formed. इसमें कोई नई सब्सटेंस नहीं बनी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इन्हीं में ही एग्जाम्पल लूं, मैंने वाटर को आइस में चेंज कर दिया, है तो मेरा अभी भी वाटर ही. ठीक है, मैं वाटर से ही स्टार्ट हुई, दोबारा मेरे पास वाटर आ गया. ओके, फिर मैंने पेपर का साइज चेंज कर दिया, मैंने छोटा कर दिया उसको. ठीक है, तो डिड आई गेट एनी न्यू सब्सटेंस? पहले भी पेपर था, बाद में भी पेपर ही मिला मुझे. ओके, रेड हॉट आयरन, जब मैंने आयरन को गर्म किया, डिड आई गेट एनीथिंग न्यू? पहले भी आयरन था, बाद में भी आयरन ही मिला. ओके, क्ले मॉडलिंग, पहले भी क्ले थी. ठीक है, जब उसको मैंने यूज करके कोई आर्टिकल बना लिया तब भी वो क्ले का ही है. ओके, सो ऑन ऑल दीज केसेस देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म. हाँ जी, एनी अदर पॉइंट? वेरी गुड. No energy change is involved. यहाँ पर उस सब्सटेंस की एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती है. क्यों? क्योंकि एनर्जी चेंज सिर्फ किस में होता है? जब आपकी सब्सटेंस जो है वो केमिकली रिएक्ट करते हैं. whenever there is a chemical reaction going on. Since here in this case no chemical reaction is there, तो कोई एनर्जी का चेंज नहीं होगा. Okay, there will be no change in energy for any of this. Clear बेटा? और कोई point? Very good. This is temporary change. Permanent. तो थोड़े टाइम के लिए रहता है, फिर जब आप कंडीशंस चेंज करते हो, ओके, इट गेट्स रिवर्स्ड. हाँ जी, ओके, वेरी गुड. So here the physical properties they are changed only. There is change in physical properties of the substance. So as I told you, physical properties में हम क्या देखते हैं? उसका साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका कलर क्या है. ओके, these all are the physical properties. तो यही प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होती है, बाकी केमिकली वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है. उसका साइज चेंज हो सकता है, उसका शेप, कलर, ये सारी चीजें जो है वो चेंज कर सकती हैं, बट अदरवाइज देयर इज नथिंग चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन. ओके, दैट्स इट. फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली ये होती हैं कि देखने में वो कैसा है. ओके, तो उसका कलर क्या है, शेप कैसी है, साइज कैसा है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हम चीजों का ले लेते हैं. ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं. राइट,
चलिए, इफ आई टॉक अबाउट द केमिकल चेंज नाउ, अगर ये रिवर्सिबल है तो केमिकल चेंज मैं दोबारा चेंज नहीं कर सकती, तो दैट मीन्स दैट चेंज विल बी परमानेंट चेंज। यहाँ पर ये टेम्पररी चेंज था, वहां पर वो क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखेंगे, कोई नई सब्सटेंस बनेगी, उसका नया कलर होगा, ठीक है, उसका कुछ और कलर हो सकता है, उसका कुछ और शेप हो सकती है, कुछ और साइज हो सकता है, न्यू, ठीक है, नई चीजें बनेंगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया बर्निंग ऑफ पेपर में, तो जो उसका नया जो पेपर बर्न होके ऐश में कन्वर्ट होगा, तो वो ऐश का कलर क्या होगा, प्लस उसका टेक्सचर कैसा होगा, पाउडरी। तो पहले तो पेपर पाउडरी नहीं था, बाद में पेपर पाउडरी हुआ ना, ओके। So this is how the characteristics they will change in the chemical change. A reaction will take place. यहाँ पर एक chemical reaction होगी, okay. No new substances formed, but chemical change में new substance will form. ठीक है, तो chemical change में एक नई substance जो है वो बनेगी with different properties. Energy change, it will be involved क्योंकि chemical reaction हो रही है, okay. And last there is change in the both physical and chemical properties, दोनों में change आएगा। जैसे अभी आपको एग्जांपल दी है पेपर की, ठीक है, तो पेपर का जो कलर है, पेपर का जो टेक्सचर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम यही बताते हैं ना, कलर टेक्सचर, वो दोनों चेंज हो गए, ठीक है, तो फिजिकली तो वो अलग हो गए, प्लस केमिकल बिहेवियर में हम देखते हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ओके, दैट विल बी देयर केमिकल नेचर, राइट।